series, and we are on second topic, which is sorting and searching. We have already done introductory problems, all, and approximately all. But now let's focus on this problem. Uh, we have already covered four problems from this sorting and searching. So this is the fifth one, I think. And let's start. And what we are doing two problems in one video. I'll code one completely, and one I will just explain the pseudo code so that we can fit in that time. But if you want like two problems in two separate video and detailed discussion and detailed coding especially, then you can tell me in comments, then I'll look into it. So restaurant customers, so you are given an arrival time of n customers that are coming into restaurant. What was the maximum number of customers at the restaurant at any time? So you are given arrival time and leaving time also. Sorry. So you are given n customers. He arrives at this time, leaves at this time, arrives at this time, leaves at this time. So at a particular moment, there would be some moment where the number of customers is maximum at the current time in the restaurant. You have to return that number of customers, right? Maximum number of customers that are present at a given time. So input format, let's talk about input format. So n is the number of people that are there, which are going to come in the restaurant. And then the timings like arrival time and leaving time for first person, and then so on till n person. So and lines of input, and then you have to return the maximum number. So how I did, basically kind of sorted, right? First of all, like what you need some particular point of time. You don't need the actual point of time. You only need the number of customers. But at this particular time, then all the customers and number of customers are maximum. Like okay, first one is also present, third one is also present, the fourth one is also present. Maybe second one leave early. Second came and leave early, and then third came, and then fourth came, third is still going on, fourth just came, first was still going on. So this is kind of a scenario where three persons are there. Now how do you get this number, maximum number of customers? Okay, so yeah, what I did for this problem is basically arrival to make a tick mark for arrival and departure. So initially the the number of the people inside restaurant is equal to 0 when the first person come means like arrival mark. So when someone arrives, we just increment the number of people. When someone departs, we just decrement the number of people. The good point is that we don't need to care about which is coming, who is leaving. We just need to say, okay, if it is arrival operation, then increment by +1. If it is a leaving operation, decrement by -1. Who is coming, who is leaving, doesn't matter. Let's say first come, then second came, and then second leaves. Still the answer is one at the particular moment, right? If first leaves, still the answer is one at the particular moment. So what I did is just like kind of beautifully took on the small numbers like 5, 8, 2, 4, 3, 9, okay, and assigned them a particular mark. Like 5 is assigned to 0, which means 5 is arrival, 2 is arrival, 2 is 2 comma 0, 3 comma 0 arrival, 8 comma 1, 4 comma 1, 9 comma 1. So these means like this is arrival, which is having 0 as a mark, or which is having 1 as a mark is my departure. And then I sorted up not based on, like, obviously based on this, not based on tick marks. So we just stored something like pairs of 50, 81, 20, 41. Okay, and then we sorted. So 20 came first, then 30 came first, then 41, okay, then 50, then 81, then 91. तो अभी मेरे को पता चल गया कि 2 1 2 0 3 0 these are like, और फिर मैंने इसको ऐसी लाइक फॉर लूप चलाया एंड आई स्टडी कि कैसे नंबर आ रहे हैं. तो मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेके टोटल, मतलब जो भी साइज मेरा वेक्टर का बन गया था, विच इज 2 into 3, 6. और फिर मैंने 2 को देखा, इसके पीछे क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो मैंने +1 करा. फिर 3, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मैंने +1 करा. सो अभी करंटली 2 हो गया मैक्सिमम, और हर बार मैं मैक्स को अपडेट करता जा रहा हूँ. और इसके बाद अब 4 आएगा, उसके पीछे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने माइनस कर दिया. आई डोंट नो कौन गया, बट कोई गया, ठीक है, तो -1 1 हो गया. और अब उसके बाद 5 आएगा, वो एक एंट्री है, तो उसके बाद +1 हो गया, फिर से 2 हो गया, तो अपडेट मैक्सिमम मतलब हो रहा है बार बार. एंड देन 8 में -1 हो गया, 9 में -1 हो गया. सो दैट्स व्हाट आई डिड. आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल. आई जस्ट शो यू द कोड. तो लॉजिक मैंने आई थिंक बता दिया है. So what you have to do, you have to take input, you have to create a new vector which is basically having a arrival time comma 0, which is a tick mark of arrival, leaving time comma 0, which is 1, which is the tick mark of leaving. और इन सबको मिक्सचर बना देना. ऐसा नहीं है कि अराइवल को सेपरेटली डील करना है, डिपार्चर को सेपरेटली डील करना है. सबको मिक्सचर में यूज करा. आई थिंक देयर इज आल्सो वे जिसमें हम अराइवल को सेपरेट डील करते हैं और डिपार्चर को. बट this is the best way. Like you don't need to care about the observation behind this. You don't need to care about which person came, which person leave. You just need like the total number of इनिशियली 0 थे, जब कोई आएगा तो +1 करेंगे, जब कोई जाएगा तो -1 करेंगे. दैट्स इट. सो सी अबाउट दिस वेक्टर v, वेक्टर v. ए भी मैंने इनपुट लिया, और मैंने ए को 1 से करा और बी को 0 से करा. ओके, ए को 1 से, मतलब अराइवल को मैंने 1 से करा है, बी को 0 से करा है.
फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि अब बी प्लस वन कह रहा है मैंने, क्योंकि वो बी मोमेंट पे वो लीव कर रहा है, पर बी मोमेंट पे वो अभी हमारे साथ है, बी प्लस वन पे वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड फिर मैंने जब सॉर्ट करा तो ऑब्वियसली जो छोटा होगा, अराइवल अगर तो ये मैंने इसलिए करा है कि देखो अराइवल और डिपार्चर जब सेम हो जाए, सो किसी का डिपार्चर है टू, किसी का अराइवल है टू, तो मैं पता है किसको स्टडी करूंगा पहले। बट एक्चुअली अगर किसी का डिपार्चर टू है तो वो एक्चुअली डिपार्चर मैं टू प्लस वन थ्री से कर रहा हूँ। तो लेट्स से अभी अभी कोई टू पे गया और थ्री पे कोई आ रहा है, ठीक है। तो जब टू पे गया उसको मैं टू पे स्टडी नहीं, मतलब ऑब्वियसली मैं क्या पुश करा मैंने, थ्री कॉमा वन पुश करा, थ्री कॉमा जीरो पुश करा। देन कोई थ्री पे आ रहा था तो मैंने थ्री कॉमा वन पुश करा, ठीक है। तो अभी मैंने सॉर्ट कर दिया, तो थ्री कॉमा जीरो सबसे पहले चलेगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू जीरो, आई कॉमा इज इक्वल टू वन, थ्री कॉमा जीरो पहले चलेगा। तो अभी देखो वन तो नहीं है तो मैंने सी माइनस माइनस कर दिया, तो सी की वैल्यू अभी मैंने काइंड ऑफ यू नो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि पहले एक बंदा चला गया सेकंड, टू सेकंड पे, और अगला बंदा आया थ्री सेकंड पे, मतलब मतलब वो वो लीव कैसे करा, और उसको आना एंट्री भी तो लेनी पड़ेगी। तो ये चीज ऑब्वियसली ट्रू है कि कोई बिना एंट्री के लीव नहीं कर सकता। तो आई थिंक तुम जीरो तो वन तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पहली चीज। एंड बस इसलिए मैंने उसको रखा है क्योंकि वो एक्चुअली टू पे चला गया था, और मैं उसको थ्री की तरह काउंट कर रहा हूँ, तो वो ऑपरेशन पहले होगा कि थ्री पे वो प्रेजेंट नहीं है, भले ही मैंने थ्री लिखा है पर वो थ्री पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए माइनस माइनस सी एंड देन प्लस प्लस सी, पर सी की वैल्यू मैक्सिमम आपको जीरो ही मिलेगी, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड या और ये सिनेरियो पॉसिबल भी नहीं है आई थिंक, जिसको मैंने टेक केयर करने की कोशिश करी। सो तुम ए कॉमा जीरो एंड बी प्लस वन कॉमा वन भी लोगोगे तो हो जाएगा। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि हर एक एलिमेंट के लिए जाएंगे वी में, इफ आई वन इज इक्वल टू वन एंड सी प्लस प्लस, इफ इट इज जीरो देन सी माइनस माइनस, मतलब अराइवल है तो प्लस प्लस, डिपार्चर माइनस माइनस, हर टाइम मैक्स लेते जाना है, रिटर्न मैक्स। आई थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द मूवी फेस्टिवल। Again, we are doing two problems in one video, so that's why I've not coded it up entirely, but मैंने काफी explain कर दिया I think solution, और I believe इसके comparison में I think वो easy है थोड़ा सा, but let's see. I don't know exactly remember. In the movie, N movies will be shown. You know the starting ending of each movie. What is the maximum number of movies that you can watch? Okay, so uh, तुम दोनों में से किसी को भी कंपैरेटिवली इजी बना सकते हो, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन देखना, और ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट ये कई बार ये काफी अच्छा लेवल डीपी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, और अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, लाइक आई बिलीव इट्स अ डीपी प्रॉब्लम, बट ये शायद ग्रेडियंट ऑफ सर्चिंग सॉर्टिंग में है, तो ये ग्रीडी तरीका होगा इसका, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, डीपी से करा हुआ है, और डीपी का भी काफी स्टैंडर्ड इंटरवल डीपी का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो इसलिए लेट मी गो अबाउट इट वन बाय वन। सो मूवीज हैं, ठीक है, हर मूवी का एक स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम है, और ये इंटरवल्स बन गए बेसिकली कि ये मूवी अब स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है। हो सकता है कोई मूवी स्टार्ट हो जाए इसके एंड होने से पहले, तो ये इंटरवल ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। और हो सकता है इंटरवल डिसजॉइंट हो, कि पहले खत्म स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा खत्म हुआ, ठीक है, थोड़ी देर बाद, एंड सो ऑन। तो एन मूवीज का ऐसा कुछ सेट दे रखा है, एन इंटरवल्स दे रखे हैं बेसिकली, तुम्हें तुम्हें बताना है कि टोटल नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में कितने ले सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम मूवीज में कितनी देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक मूवी में बैठ गया तो ये इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि मैं उसको छोड़ के बीच में और फिर वो दूसरे में नहीं जा सकता, और वो काउंट नहीं होगी उस हिसाब से वैसे, ठीक है। तो मतलब पहली बात तो जा नहीं सकते, और अगर या तो ये दे देता कि जा नहीं सकते एक छोड़ के भी दूसरे में, या फिर ये दे देता कि अगर तुम एक छोड़ के दूसरे में जाते हो तो वो काउंट नहीं होगी पहले वाली, मतलब जब तक तुम कंप्लीट पूरी ना देखो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवीज दैट यू हैव वॉच्ड, ये सब कुछ बताना है हमें, दैट यू कैन वॉच एंटायरली। ओके, उन्होंने बोला हुआ है एक वर्ड एंटायरली, सो उसी से क्लियर हो जाता है नंबर ऑफ मूवीज, एंड देन एन लाइन्स ऑफ मूवी, ईच लाइन हैज टू स्टार्टिंग एंडिंग पार्ट। तो ठीक है, जैसे मैंने बोला इंटरवल्स हमारे पास आ गए, हमें ऐसे इंटरवल्स बताने की, ओके ये फर्स्ट इंटरवल मैं ले सकता हूँ, मैं थर्ड सेकंड इंटरवल ले सकता हूँ, मैं थर्ड इंटरवल ले सकता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट है वो सेकंड के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, सेकंड थर्ड के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब वन टू थ्री आपस में एक भी बार ओवरलैप नहीं कर रहे, तो मैं तीनों मूवी सेपरेटली देख सकता हूँ। तो ऐसे कुछ जितने भी इंटरवल्स हैं तुम्हें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स तुम देख सकते हो। तो डीपीए ऐसे होता है कि जो लास्ट वाली मूवी है, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो लास्ट वाली मूवी है, उसके बाद और कोई मूवी नहीं है, तो ये इसका वन होता है, ठीक है। तो डीपी ऑफ एन माइनस वन। तो अब इससे पहले वाली जो मूवी है उसके जो मतलब जैसे अगर कोई आई मूवी तुम देख रहे हो, उसका कैसे पता चलेगा, लेट्स से आई आई प्लस वन के साथ ओवरलैप कर रही है, तो तुम आई देख रहे हो तो तुम आई प्लस वन नहीं देख पाओगे, तुम अगली कौन सी मूवी देख पाओगे, जो आई की एंडिंग टाइम है उसके बाद जो स्टार्ट हो रही है मूवी, तुम वो देख पाओगे। तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ या तो डीपी ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, बट कॉमा द सेकंड थिंग जो मैंने बोला कि अगर आई मूवी इस टाइम पे एंड हो रही है, सो डीपी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आईडी, आईडी वो ऐसे आया है कि वो मूवी है जो कि इसके एंडिंग के बाद स्टार्ट हो रही है, सो वो हमें लोअर बाउंड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने इसका एंडिंग पॉइंट लोअर बाउंड से स्टार्टिंग में निकाला, ठीक है, कि भाई कौन सी ऐसी जस्ट आई नीड कौन सी ऐसी मूवी है जो इसके एंड होने के बाद स्टार्ट हो रही है,
उसके लिए तुम क्या करोगे, कुछ भी सोचो, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एफिशिएंटली लॉग इन टाइम में। तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली लॉग लोअर बाउंड ठीक है, मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, और कोई तरीका है तो तुम देख सकते हो, बट लोअर बाउंड इज काइंड ऑफ जनरल वे फॉर दिस। तो लोअर बाउंड से हमें वो ऐसा इंडेक्स मिल गया जो मूवी है जो कि इसके बाद स्टार्ट हो रही है, इसके खत्म होने के बाद स्टार्ट हो रही है। तो मैं सीधा उस पर चला गया और मैंने वन प्लस कर दिया कि मैं इस मूवी को पूरा देखूंगा, इसलिए वन प्लस फॉर दिस। एंड उसके बाद जितना जो भी उसके बाद देख सकते हो तुम, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, क्योंकि हम रिवर्स डीपी चला रहे हैं n-1 से आ रहे हैं। तो लेट मी कोड दिस ऑब्वियसली। डी एंड हमें दे रखा है, और ए बी सीन ए बी वी डॉट वी बी ए कॉमा बी। ठीक है, वेक्टर बना दिया मैंने सॉर्ट कर दिया अपने वेक्टर को। सॉर्ट ऑल वी, ये सारे अभी मैं डिक्लेयर करूंगा, मैं कर ही देता हूँ। ऑल और इसके बाद मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर कराने दो, वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली फॉर ऑटो एस डॉट पुश बैक आई एफ जीरो। एंड देन मेरे को क्या करना है, एक डीपी वेक्टर बनाना है, डीपी ऑफ साइज लेट्स से n+1 n+2 कुछ भी, एंड फिल करना है इसको जीरो से पहले। मेन पॉइंट इज डीपी ऑफ n-1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके बाद और नहीं है। एंड फॉर आई रिवर्स फॉर आई कॉमा n-2 से चलेगा हमारा, एंड जीरो तक जाएगा। एंड एज सेड कि सबसे पहले हम लोअर बाउंड निकालेंगे इस पर्टिकुलर मूवी के लिए, विच इज एस डॉट लोअर बाउंड डॉट लोअर बाउंड एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड, और इसकी एस ऑफ आई है ना, एंड ऑफ आई, एंड ऑफ आई कैसे पता चलेगा, विच इज वी ऑफ आई ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एस डॉट बिगिन। तो इंडेक्स मिल गया उस मूवी का जो कि स्टार्ट होगी इसके स्टार्ट होने के बाद। तो अभी मैं बोलूँगा कि dp ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ आई प्लस 1 कॉमा 1 प्लस dp ऑफ आई डी। और इफ आई डी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आई कैन जस्ट से कि dp ऑफ आई इज इक्वल टू dp ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ठीक है एल्स, और यहाँ पे सी आउट हमें कराना है मैक्स एलिमेंट की कोई सी भी ऐसी चेन ऑफ लेंथ हमें मिल जाए कि जो मैक्सिमम हो, तो dp ऑफ dp प्लस n। आई थिंक इसमें n+2 की नीड नहीं थी, बट n तक की नीड है। फिर आगे देखते हैं इसको। द गुड पार्ट इज कि हमने सॉर्ट कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट्स बना लिया हमने, देन डीपी एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स का यूज करा। he was not declared, but
Only one. थिंक +1 नहीं करना मेरे को, नॉर्मल इस पे चला देते हैं। ठीक है, ठीक है, सबमिट करते हैं इसे। क्रिएट अ न्यू मूवी फेस्टिवल 2, सबमिट करते हैं फेस्टिवल 2। Okay, so this is the, yeah, like decent problem, and DP मैंने इसमें लगाई है, but sorting भी लगाई है, तो sorting तो available है और lower bound भी है. So these are the two which belongs to this topic, searching and sorting. But I'm not quite sure कि एक इसकी approach होगी जिसमें केवल greedy लग रहा होगा, DP नहीं, क्योंकि DP का part इतना ही है बस, इतना कुछ हाई DP नहीं है इसमें। DP का part इतना ही है कि इसको जैसे मैंने complete कर लिया तो next कौन सा है जिसको मैं ले सकता हूँ, तो वो मेरे को lower bound से मिलता है। तो दैट इज वन थिंग, तो एक काइंड ऑफ चेन बनती जाएगी। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी, वो हमें रिटर्न करना है कि इसके बाद मैं ये देख सकता हूँ, इसके बाद मैं देख सकता हूँ, उसके बाद मैं वो देख सकता हूँ। आर यू गेटिंग दिस? चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके बाय।